Okay, so good morning, everyone. We will start today's lecture. So, we are discussing the topic that is bioanalytical to various bioanalytical tools in ASU system. So there are total three parts in bioanalytical tools, that is chromatography techniques, non-chromatography techniques, and spectroscopic method. Apart from this, we are already covered the chromatography techniques, and currently we are running on the non-chromatographic techniques. Okay, in non-chromatography techniques, we are already covered the gravimetric analysis. Anybody is having any doubt up till now? In previous lecture also I have asked, so everybody says that there is no doubt. So I think I should start with directly the titrimetric analysis. So what is exactly titrimetric analysis? So various titrimetric reaction like redox reaction, complexometric titration, acid-base titration are used to determine for the moisture content and various phytochemicals and vitamin as an example vitamin C. So these are nothing but the titrimetric analysis. So what is exactly titrimetric analysis? That is perform the titration with the help of different techniques. One titration I have mentioned, skip or forget to mention, that is a back titration. ठीक है, maximally सॉरी हर्बल मेडिसिन में जब भी तुम लोग को शुगर का वगैरह टेस्ट करना होता है, दैट टाइम मैक्सिमम पीपल आर यूजिंग द बैक टाइट्रेशन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन्वर्टेड शुगर, क्योंकि मैक्सिमम प्रोडक्ट में तुम लोग का क्या होता है, इन्वर्टेड शुगर होता है. व्हाट इज एग्जैक्टली इन्वर्टेड शुगर? इन्वर्टेड शुगर इज नथिंग बट द ओनली शुगर इज जस्ट योर ग्लूकोज. सो इन्वर्टेड शुगर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, जिसमें क्या होता है, शुगर को तुम लोग को वाटर में पहले डिजोल्व करते हो एंड उसके बाद उसको ड्राई करते हो. जैसे किसी भी, जैसे कि तुम लोग ने, अगर पता नहीं, दिवाली में अगर तुम लोग घर पे कुछ प्रोडक्ट बना रहे होंगे और उसके लिए अगर तुम लोग को क्रिस्पी टाइप ऑफ शुगर चाहिए होता है, जो मतलब एक पर्टिकुलर उसका क्रिस्पीनेस आता है एंड स्मूथ लगता है, तो उसके लिए सबसे पहले शुगर को पानी में बॉईल करते हैं और उसके बाद उसको इवेपोरेट कर देते हैं टू फॉर्म में प्रेसिपिटेट, जिससे क्या होता है, शुगर इज कन्वर्टेड इनटू द different form, that is a sugar plus fructose. So that is the inverted sugar, and maximum inverted sugar are using for your maximum product herbal products. So उसके लिए हम लोग बैक टाइट्रेशन करते हैं. एसिड बेस टाइट्रेशन सबको सबको पता है. व्हाट इज रेडॉक्स टाइट्रेशन, ये also तुम लोग को पता है. कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन भी हम लोग ने लास्ट सेमेस्टर में परफॉर्म किया था. सो एनीबडी हैविंग एनी डाउट इन टाइट्रेशन में? किसी को कुछ भी डाउट है? Just write no if you don't have any doubts. Okay, so I will continue for the next test. Just write no. Okay, so we will move for the next slide. Thermogravimetric analysis. What is exactly thermogravimetric analysis? TGA, that is nothing but the thermogravimetric analysis curve for powder product, are used to study the decomposition pattern. Example, bhasma, coal, sulfur, etc. It is also used to check the presence of different heavy metals compound like HGS, which is first converted to the mercury oxide and then to be composed to S2 mercury vapors and oxygen at 500 degrees Celsius. This is the one of the example which is given in thermogravimetric analysis. So what exactly happen in thermogravimetric analysis and where we are using the thermogravimetric analysis? Okay, you have completely one unit on your thermogravimetric analysis, I think, in a fourth semester. So up till now, for to understand exactly what happened, so it is nothing but the study the curve, that is TGA curve. So you can say study the particular changes in a particular product with respect to the temperature. That means if we are increasing temperature continuously in linear velocity, मतलब कंटिन्यूस, कि पहले तुम लोग ने 100 डिग्री पे किया, फिर 102, 104, 106, 108, 110. So continuously you are rising the temperature and you are analyzing the what are the changes happening to your sample with respect to temperature. First, that is a basic criteria in principle of your thermogravimetric analysis. Second, इसमें क्या करते हैं, you are comparing the sample with the standard with respect to the temperature. मतलब उसके अंदर उसका apparatus होता है जिसमें दो पैन होते हैं, एक में तुम लोग सैंपल रखते हो, एक में तुम लोग स्टैंडर्ड रखते हो. ठीक है, तो स्टैंडर्ड एंड सैंपल को दोनों को तुम लोग कंटिन्यूसली हीट करते हो एंड विथ दिस यू आर कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड एंड सैंपल की. सैंपल के स्टैंडर्ड के हिसाब से सैंपल में जो कुछ भी चेंजेस हो रहे, दे आर द सेम और डिफरेंट. मतलब यू आर कंटिन्यूसली राइजिंग द टेम्परेचर, वॉट एवर चेंजेस हैपन इन योर सैंपल इज द सेम लाइक योर स्टैंडर्ड और इज द डिफरेंट. ठीक है, इसके अंदर हम लोग दो रिएक्शन एब्जॉर्ब करते हैं, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक.
एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है, एंड एंडोथर्मिक में क्या होता है, तुम लोग का हीट एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। सो दोनों रिएक्शन हम लोग मेजर करते हैं कि सैंपल कितना हीट एब्जॉर्ब करता है एंड स्टैंडर्ड कितना हीट एब्जॉर्ब करता है। अगर एक्सपोज करे तो कितना हीट वो इवॉल्व करता है, स्टैंडर्ड एज वेल एज द सैंपल, और उसको कितना टाइम लगता है। सम टाइम हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं एंड देखते हैं कि सैंपल के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो उसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर है। उस पैरामीटर में एक्चुअली हम लोग क्या चेक करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड टेम्परेचर तुम्हारे सैंपल में क्या क्या चेंजेस होते हैं, सैंपल कैसे डिकम्पोज होता है, व्हेन सैंपल इज डिकम्पोजिंग व्हाट आर द volatile substance are removed from the sample। ऐसे उसका पूरा व्हेन जब तुम लोग उसको टेम्परेचर से मतलब टेम्परेचर अप्लाई करते हो तो सैंपल में जो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि सब्लिमेशन होता है या फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसके हिसाब से उसकी प्यूरिटी क्या रहेगी, ये सारी चीजें एक उसका एक पर्टिकुलर कर्व का पैटर्न आता है। जैसे एचपीएलसी में कैसे हम लोग क्रोमेटोग्राम मेजर करते हैं, सेम टाइप में टीजीए का एक कर्व का पैटर्न होता है, उसमें भी पीक्स आते हैं, एक फ्लैट कर्व आता है, मतलब जिसके अंदर तुम लोग को क्या बोलते हैं, स्टेयर के जैसा उसका कर्व होता है। स्टेट मतलब स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन, इस टाइप में उसका कर्व होता है। तो उसके हिसाब से हम लोग पता करते हैं कि एग्जैक्टली सैंपल में क्या क्या चेंजेस होते हैं। मेजरली ये टेक्निक कहाँ पे यूज होती है, द टेक्निक इज मेजरली यूज फॉर द पाउडर फॉर्म ऑफ सैंपल। जैसे तुम लोग के भस्म सैंपल है, खोल सफूल इज नथिंग बट यूर यूनानी फॉर्मेशन, खोल इज नथिंग बट जो आंखों में सुरमा वगैरह भरते हैं उस टाइप में उसका पाउडर होता है। सफूल इज खोल इज अ वन टाइप ऑफ एग्जांपल ऑफ सफूल। सफूल्स आर अ डिफरेंट काइंड ऑफ पाउडर प्रोडक्ट यूज इन यूनानी मेडिसिन, जिसके अंदर तुम लोग के ईटेबल फॉर्म होते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं, मतलब सरफेस के अप्लाई करने के लिए कुछ फॉर्म होते हैं, आईज में डालने के लिए होते हैं, नोज में इंसर्ट करने के लिए पाउडर्स होते हैं। सो दीज आर द पाउडर फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट जिसके एनालिसिस के लिए मेजरली हम लोग थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस यूज करते हैं। जो सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड पॉइंट में जो एग्जाम्पल है, जिससे तुम लोग को पता चलेगा कि जैसे ही कंपाउंड तुम लोग हीट करते हो उसमें से कुछ गैसेस रिमूव होते हैं, वो कैसे रिमूव होते हैं या फिर कंपाउंड डीकम्पोज कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस में देखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टेक्निक, that is nothing but the scanning electron microscope. So what happen exactly scanning electron microscope? Scanning electron microscope is the type of electron microscope that produce the image of sample by scanning the surface with focus beam of electrons. See where अभी जो तुम लोग का नॉर्मल माइक्रोस्कोप है एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, here we are focus the beam of electron, not a beam of a light। जनरली हम लोग माइक्रोस्कोप में क्या फोकस करते हैं, लाइट, यहाँ पे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फोकस करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट विद द एटम इन योर सैंपल and producing various signals that contain the information about the surface topography and composition of the sample। surface topography is nothing but the surface का texture find out करना, that is a topography analysis, ठीक है। तो जनरली इसमें होता क्या है, नॉर्मली जैसे तुम लोग के माइक्रोस्कोप में इमेज तुम लोग देखते हो मैग्नीफाइड इमेज, वैसे ही सेम इसमें मैग्नीफाइड इमेज दिखता है, लेकिन यहाँ पे देखो फोटो दिख रहा है, इट इज नॉट अ कोरोना वायरस, ठीक है। दीज आर द पोर सॉरी एंथस एंड पोर्स जो होते हैं तुम्हारे फ्लावर्स के अंदर, उसका एग्जांपल है ये। सो लाइव एग्जांपल तुम्हें पता लगे कि इट्स गिव द 3D स्ट्रक्चर एंड व्हिच इज हाउ मच इफेक्टिव, ठीक है। सो द पिक्चर इज प्रोड्यूसिंग व्हिच इज largely magnified and we can easily see the 3D structure with the help of electron scan mic, or we can say the और एक एग्जांपल है, मतलब मैंने फोटो डाला है टू जस्ट सी के एग्जैक्टली कैसे दिखता है, ठीक है। सो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये उसका इंस्ट्रूमेंट का फोटोग्राफ है एंड यू सी अभी यहाँ पे जो है तुम लोग के वो क्या बोलते हैं जाइलम वगैरह जैसे दिखते हैं, तो हम लोग को कैसे वो 2D स्ट्रक्चर दिखता है, लेकिन इसमें जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इट इज कम्प्लीटली 3D स्ट्रक्चर। या फिर ये दीज आर द सम वायरल के ये फोटोग्राफ्स है, जिससे भी तुम लोग को पता चलेगा कि कितना प्योर फॉर्म में या फिर कितना विजुअलाइजिंग इसका इमेज है। सो टू जैसे कि भस्मा के पार्टिकल्स होते हैं, या फिर तुम लोग कैसे मैंने बोला कि ऑथेंटिकेशन के लिए अगर हम लोग को पार्टिकल के अंदर जाइलम ट्राइकोम वगैरह देखना है, तो इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग माइक्रोस्कोप इज वेरी यूजफुल टू स्टडी दिस पर्टिकुलर माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स, बिकॉज इसमें कैरेक्टर एक तो कलर, मतलब यहाँ पे अभी ये कलर दिख रहा है, लेकिन अब जितना अपने कॉलेज में मैंने देखा है वो जब स्टेन एब्जॉर्ब करता है उसी के हिसाब से उसका कलर दिखता है। एकदम डिफरेंट डिफरेंट कलर के फोटोग्राफ्स नहीं दिखते, इट्स एब्जॉर्ब द स्टेन एंड विद रिस्पेक्ट टू द स्टेन उसके फोटोग्राफ्स होते हैं, ठीक है। सो दैट इज अ
scanning electron microscope, which is majorly we are using for macroscopic analysis. Next, that is the X-ray diffraction techniques. So X-ray diffraction technique is a technique used to determine the atomic and molecular structure of the material. See, it is a use for atomic and molecular structure of the material. Solid have the crystalline structure which correspond to the microscopic arrangement of the atom that is represent periodically. तो basically ये कहाँ पे use होता है? When you are doing the second phase of analysis, that जिसके अंदर हम लोग फार्माकोलॉजी के बाद कंपाउंड की केमिस्ट्री चेक करते हैं, वेयर वी आर एक्चुअली फाइंड आउट द स्ट्रक्चरल एलिसिडेशन एंड कंपाउंड. तो एग्जैक्टली तुम लोग का जो फाइटोकेमिकल है उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसका बैंडिंग का पैटर्न क्या है, उसका एक प्रॉपर 3D स्ट्रक्चर तुम लोग को एक्सरे रिफ्रैक्शन टेक्निक में मिलता है. With the help of that we can easily analyze the which type of compound है, how exactly इसका structure कैसा है, उसके bonding कैसे है, उस 3D image तुम लोग को easily find out होते हैं with the help of X-ray diffraction technology. It is same as your X-ray crystallography techniques which is we are studied in last year in your spectroscopic techniques. ठीक है? Okay. So here we completed the non-chromatographic techniques. Whatever the non-chromatographic techniques we have studied, that is nothing but your gravimetric analysis. Then next, titrimetric analysis, thermogravimetric analysis, scanning electron microscopy, and next is your एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक. अभी इसमें देखो मैक्सिमम चीजें कवर होती है, जैसे कि तुम लोग का मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस से वगैरह तुम लोग के ऐसे वगैरह परफॉर्म कर सकते हो, वो तुम लोग को पता चलता है. एंड और एक क्या देखा था हम लोग ने, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस व्हिच इज मेजरली यूज्ड फॉर योर पाउडर्स. Next technique, next branch is your spectroscopic method, which is also very useful for analysis of your herbal products. So what are the spectroscopic techniques majorly we are using in herbal analysis? That is the ultraviolet or visible spectroscopy, that is nothing but your UV visible spectroscopy. Next, infrared spectroscopy, that is your FTIR or IR techniques. Atomic absorption spectroscopy, ICP AES and ICP MS. ठीक है, let's see one by one. So first is your ultraviolet and visible spectroscopy. Everybody knows well कि हम लोग ये टेक्निक कहाँ पे यूज करते हैं. Majorly we are using for qualitative as well as quantitative analysis for assay purpose, and किसी कंपाउंड में से पर्टिकुलर फाइटोकेमिकल अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है तो वो कंपाउंड को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेथड यूज करते हैं. So ultraviolet and visible spectrometric analysis, that is based on the absorption or UV and visible radiation. Spectral analysis of herbal raw material and product, which is we are done with the help of ultraviolet and visible spectroscopy. It is used for the identification and determination of the phytoconstituent. Quantitative analysis of active ingredient and finished product is done by the UV visible स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है, मैं इतना डिस्कस नहीं करती बिकॉज तुम लोग को ऑलरेडी क्लियर है कि विजिबल में एग्जैक्टली हम लोग करते क्या. नेक्स्ट, दैट इज द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. So it is mainly used for identification of the functional group of a chemical compound and for the presence of organic matter in various powder like a bhasma. ठीक है, so it is mainly used किसके लिए यूज होता है, to identification of the functional group of the chemical compound. जो भी तुम लोग के फाइटोकेमिकल्स है उसके एग्जैक्टली फंक्शनल ग्रुप कौन से प्रेजेंट है वो फाइंड आउट करना है, तो जिसके लिए हम लोग IR यूज करते हैं. It is also check the identity and purity of the sample according to the sample. How we will check the purity of the compound? Definitely for the checking the purity you need to have the standard or specific spectra which is available. जो प्योर कंपाउंड है उसका, तो उसके साथ जब तुम लोग का सैंपल का स्पेक्ट्रा तुम लोग कंपेयर करते हो तो उसके जो इन्वर्टेड पीक होते हैं, दैट इज पीक नंबर होते हैं, वो एग्जैक्टली अगर सेम आते हैं एज अ स्टैंडर्ड, दैट मीन्स योर कंपाउंड इज 100% प्योर. अगर उस पीक में कुछ वेरिएशंस आता है, मतलब समथिंग एक्स्ट्रा कंपाउंड इज प्रेजेंट इन योर सैंपल, जो उसके एडिशनल फंक्शनल ग्रुप के एक्स्ट्रा एडिशनल तुम लोग को पीक दे रहा है, दैट इज द वे वी चेक द प्यूरिटी ऑफ द कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं? डेफिनेटली जो भी तुम लोग के फंक्शनल ग्रुप है उसे तुम लोग एनालिसिस करके फाइंड आउट करोगे कि एग्जैक्टली कौन सा कंपाउंड है. एंड सपोज इफ यू हैव द लाइब्रेरी स्पेक्ट्रा इन यूर PC और along with your FTI, तो लाइब्रेरी स्पेक्ट्रा में अभी तक के जितने भी कंपाउंड है, ठीक है, उसके बेस्ड ऑन देयर फंक्शनल ग्रुप जितने भी अपने पास केमिकल कंपाउंड है उसके स्पेक्ट्रा लाइब्रेरी स्पेक्ट्रा में अवेलेबल होते हैं.
तो उस स्पेक्ट्रा के साथ अगर तुम लोग तुम्हारे कंपाउंड को वो मैच देता है कि 80% ये कंपाउंड के साथ वो 80% मैच कर रहा है, ये कंपाउंड के साथ वो 90% मैच कर रहा है, तो उसके हिसाब से वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द कंपाउंड। अभी तुम लोग के जो भी हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं वो आयुर्वेदिक फॉर्म में होते हैं, तो उसके अंदर आइडियली इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एग्जैक्टली कितने फंक्शनल ग्रुप देगा, इट इज एक्चुअली टास्क, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, वो शायद तुम्हारे कंपाउंड में इंटरफेयर करेंगे, लेकिन at least to you can easily find out which are the functional groups. So based on the functional group it is easy to understand the exactly कौन से टाइप का कंपाउंड तुम्हारे पास प्रेजेंट रहेगा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्निक, जैसे कि एमएस वगैरह यूज करके तुम लोग एग्जैक्टली उसका केमिकल फॉर्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो। इंफ्रारेड से एग्जैक्टली तुम लोग को प्योर फॉर्म ऑफ कंपाउंड का पता लगाना इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट, ठीक है। ओके, so next technique, that is your atomic absorption spectroscopy, which is very important technique in your ayurvedic preparation. इसके सिवा तुम लोग आगे नहीं जा सकते। So where we are actually using this particular technique. So atomic absorption spectroscopy, different type of bhasma are prepared containing different heavy metals, minerals and trace element like Fe in loha bhasma, copper in tamra bhasma, gold in swarna bhasma, silver in arku bhasma, एंड फॉर जिंक इन यशोदा भस्मा एंड मर्क्यूरी, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के तुम लोग के भस्मा होते हैं बेस्ड अपॉन द वो एलिमेंटल कंपाउंड के हिसाब से उसको डाइजेस्ट करके वगैरह उन्होंने बनाया, तो उसके अंदर एग्जैक्टली वो पर्टिकुलर एलिमेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो चेक करना बहुत जरूरी है, बिकॉज हायर अमाउंट ऑफ एलिमेंट इट मे बी द टॉक्सिक फॉर योर बॉडी, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज स्टार्ट डिपॉजिटिंग इन योर किडनी एंड इट इज हार्म फॉर योर किडनी। सो जो कुछ भी भस्मा है उसके अंदर तुम लोग को एग्जैक्टली एलिमेंटल कंटेंट कितना है वो मेजर करना बहुत जरूरी है। सो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस अगर हम लोग को करना है तो एएस इज द बेस्ट टेक्निक फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मेटल्स, मिनरल्स एंड ट्रेस एलिमेंट के लिए होता है। सो इट इज important to analyze this elemental composition for the presence of this heavy metal in their elemental state and should ensure that they are within the prescribed limit. Okay, अभी इसका मीनिंग क्या है, that is important to analyze their elemental composition for the presence in this heavy metal in their elemental state means exactly what, ठीक है। जब भी हम लोग किसी मेटल का भस्मा बनाते हैं so we actually converted inorganic metal to organic form, so which is can easily digestible in your body system, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली 100% तो कवर नहीं होगा, तो उसका जो एलिमेंटल स्टेट है मतलब इट इज अगर इनऑर्गेनिक स्टेट वो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता है एंड सम अमाउंट इट इज प्रेजेंट इन इनऑर्गेनिक स्टेट, तो उसका एग्जैक्टली लिमिट कितना है, विद इन द लिमिट है या फिर वो लिमिट से ज्यादा है। सो डेफिनेटली अगर वो लिमिट से ज्यादा है मतलब क्या तुम लोग का प्रॉपरली भस्मा में वो सैंपल कन्वर्ट नहीं हुआ है तो सैंपल इज रिजेक्टेड, बिकॉज डेफिनेटली the inorganic form of metals are harmful for your body. So it is mainly done for the atomic जो कुछ भी analysis है elemental का analysis which is done with the atomic absorption spectroscopy, ठीक है। ICP-AS, that is your ICP-AES and ICP-MS, it is a little bit advanced technique, मतलब both the technique AS and inductive coupled plasma atomic emission spectroscopy or inductive coupled plasma mass spectrometry, both the techniques are also used for elemental analysis only. So it is little bit advanced than atomic absorption spectroscopy, जिसके अंदर तुम लोग को प्लाज्मा मतलब यहाँ पे भी क्या यूज करते हैं, we are using the inductive coupled plasma. Inductive coupled plasma means what, the use with the help of inducting wires, मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से तुम लोग टेम्परेचर वगैरह अप्लाई करते हैं। वी आर हाई टेम्परेचर प्लाज्मा, दैट इज अ कोल्ड हीट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कोल्ड हीट वी आर प्रोड्यूसिंग टू बर्न यूर सैंपल, एंड उसके बाद उसमें से जो भी इलेक्ट्रॉन एमिशन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से वी कैन फाइंड आउट द एनालिसिस ऑफ योर एलिमेंटल सब्सटेंसेस। So it is functionally same as your AS, but it is little bit advanced. ICP MS के अंदर you can easily also find out the कौन से metal, मतलब ICP AES में you can just analyze the quantitative analysis, क्योंकि qualitative करना इतना easy नहीं है, but MS के अंदर you can perform qualitative as well as quantitative. See, AS and ICP atomic emission spectroscopy, it is majorly used for क्वांटिटेटिव एनालिसिस, नॉट फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस। व्हाई? बिकॉज हम लोग को उसके अंदर पर्टिकुलर मतलब एएस के अंदर हम लोग को पर्टिकुलर जो भी मेटल हम लोग को एनालाइज करना है उसका पहले लैंप लगाना पड़ता है। मतलब क्या है,
कि अगर हम लोग को लैम्प पता नहीं है तो हम लोग कर नहीं सकते, मतलब उसके अंदर कौन सा मेटल प्रेजेंट है ये हम लोग ए से फाइंड आउट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि कर ही नहीं सकते, यू कैन डू, लेकिन उसके लिए तुम लोग को हर एक लैम्प लगा के देखना पड़ेगा, हाँ इसमें रेडिएशन आ रहा है या नहीं, इसमें रेडिएशन आ रहा है नहीं। सो इट इज नॉट गुड टेक्निक फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस, but in ICP MS you can perform qualitative as well as quantitative, because MS is majorly used for find out the molecular formula and molecular structure of the compound, that is the identification of the compound. ठीक है, so here we complete all the spectroscopic techniques, and along with that this slide we are also cover the all the bioanalytical tools which are we are using during the standardization of your ASU. So I hope you have understood all these techniques, and anybody having any doubt up till now, otherwise I will wait for 1 minute to just to recollect, otherwise we will move for the next slide. So do you have any doubt up till now? No ma'am, okay ठीक है, thank you. So अभी तक तुम लोग को कुछ भी डाउट नहीं, एंड ये एक्चुअली ये टॉपिक बहुत सिंपल, दैट इज अ बायोटिकल टूल्स फॉर यू, बिकॉज जो कुछ भी बायोटिकल टूल्स है ये सारे इंस्ट्रूमेंट तुम लोग ने फर्स्ट ईयर में इन डिटेल स्टडी किए, तो यहाँ पे से तुम लोग को देखना है कि हाउ एग्जैक्टली ऑल दिस इंस्ट्रूमेंट वी आर अप्लाइंग फॉर योर ASU analysis. So we will now come to your next and something interesting topic, that is nothing but the clinical trials which we are using in ASU system, and how exactly we are going for the clinical trials in ASU system. So I have just shared the screen once again, otherwise the screen is visible to you, or should I share it once again? Just write yes or no. Is my screen is visible? I have opened the PDF actually. Okay, so I will share the screen once again. Okay, now it's visible. Just write yes or why. Okay. So let's see this topic. ठीक है, I have shared the actually original PDF because PPT बना के उसका उतना लाइव इफेक्ट नहीं आता जितना कि ये गाइडलाइंस तुम लोग डायरेक्टली देखोगे तो जितना इफेक्ट आएगा कि हाउ एग्जैक्टली क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म, बिकॉज इसके अंदर वो सारा मटेरियल है जो हम लोग मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स के टाइम पे यूज करते हैं, तो एटलीस्ट हम लोग सब कुछ रीड नहीं कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट वी कैन गो थ्रू इट थ्रू द स्क्रीनिंग, सो इट ऑल्सो अंडरस्टैंड। पीपीटी में सिर्फ वो मैं सिर्फ वही एक दूसरे टॉपिक्स उसमें से सिर्फ कॉपी पेस्ट करके डालूंगी तो मुझे लगा कि वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, दैट्स व्हाई आई ओपन डायरेक्टली द पीडीएफ टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्लिनिकल ट्रायल्स एएफसी में कैसे करते हैं, हाउ उसका डॉक्यूमेंटेशन या फिर उसका ओरिजिनल पीडीएफ जो है, दिस इज द पीडीएफ वी प्रिपेयर बाय योर आयुष डिपार्टमेंट, दैट इज द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द इंडिया. सो वी विल स्टार्ट द डिस्कसिंग द टॉपिक, दैट इज दिस इज गाइडलाइन सीरीज 3, मतलब उसके पहले 2 गाइडलाइंस वो फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन या फिर इसके चीजों पे ऊपर है कि फार्माकोपिया के अंदर बाकी सारी चीजें कैसे करते हैं. तो गाइडलाइंस सीरीज 3 is specially made for the general guidance for the clinical evaluation of Ayurvedic intervention. So it is the guidelines prepared by the government of India. See, the Central Council for the Research in Ayurvedic Science, that is the Ministry of Ayush, Government of India, New Delhi. Okay, this is the original PDF format. I will forward this format to you on your Google Classroom. ओके, सो मैंने उसके अंदर बहुत सी चीजें जो हाईलाइट की, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर अस, बिकॉज दिस इज अ टोटल 123 पेज का डॉक्यूमेंट है. हर एक सिंगल सेंटेंस अगर मैं रीड करते बैठूंगी तो इट इज वेरी लॉन्ग टॉपिक, एंड इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज मैक्सिमम टर्म्स विच आर वी आर यूजिंग इन क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ ASU, उसमें से ऑलमोस्ट बहुत सी चीजें हैं जो सेम है जो तुम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए यूज करते हो इन मॉडर्न मेडिसिन. जो डिफरेंट पार्ट है वो हम लोग को सिर्फ मैंने हाईलाइट्स किया है, वो पार्ट हम लोग को अभी आगे जाके देखना है. ठीक है, सो वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट. सो दिस इज अ प्रोलॉग, जिसके अंदर उन्होंने जस्ट थैंक यू एंड हम लोग एग्जैक्टली आयुष डिपार्टमेंट में कैसे आए, उन्होंने आयुष डिपार्टमेंट का रिसर्च कैसे किया, न्यू लॉन्च कैसे किया. ठीक है, इसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट गाइडलाइंस जो है जो उन्होंने फॉलो किए, मतलब अगर आयुष के अंदर तुम लोग को गाइडलाइंस करने हैं तो उसके पहले हम लोग ने जो कुछ भी उसके अंदर डेवलपमेंट किया है, स्टैंडर्डाइजेशन किया है, तो विच आर द गाइडलाइंस वी आर एक्चुअली फॉलोइंग, या फिर ये जब प्रिपेयर किया था प्रोटोकॉल तो उसके लिए व्हाट आर द रेफरेंस मटेरियल उन्होंने लिया था, ये सारा इन्फॉर्मेशन तुम लोग को
प्रोलॉग में मिलेगा एग्जैक्टली हाउ दे आर गोइंग फॉर योर क्लिनिकल ट्रायल्स। देन दिस इज अ ग्लॉसरी जिसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली क्या क्या है, एक्ट क्या क्या है, एंड असिस्टमेंट कैसे किया तुम लोग ने, ऑडिट कैसे करना है, ये सारा इंफॉर्मेशन इसके अंदर लिखा हुआ है। नेक्स्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सी उसके अंदर ये मैंने हाईलाइट किया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब उन्होंने ग्लॉसरी बनाया तो उसके अंदर वॉट एवर देयर क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, मैं जस्ट पढ़ती हूँ टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली इसके अंदर क्या है। द ऑपरेशन टेक्निक एंड एक्टिविटीज अंडरटेकिंग विद इन द सिस्टम ऑफ QA to verify that the requirement for quality of the trial related activity have been fulfilled. QC activity concern everybody involved with planning, conducting, monitoring, evaluating, and data handling and reporting. The objective of QC is to avoid to expose the study subject to unnecessary risks and to avoid the false conclusion being drawn from the unreliable data. तो इसके अंदर कौन से गाइडलाइंस दिए है कि एग्जैक्टली जब भी तुम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स करने हैं तो कौन से प्रोडक्ट का ट्रायल करना है, उसका प्रॉपर मेथड तुम लोग के पास पहले से अवेलेबल होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, उसके बाद जो तुम लोग डाटा तुम लोग को मिलेगा उस डाटा का इवेल्यूएशन कैसे करना है। सबको पता है कि क्लिनिकल ट्रायल्स में ट्रायल करने से पहले वी हैव टू सबमिट ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो एग्जैक्टली उसके लिए क्या क्या लगने सारी चीजें नीचे नीचे इन डिटेल में है। तो ये जो मतलब ये मैंने हाईलाइट इसके लिए किया क्योंकि इसके अंदर जो कुछ भी ग्लॉसरी के अंदर जो भी टर्म्स है तो हर एक टर्म्स का एग्जैक्टली क्या क्या मीनिंग है वो अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने ये वाला एक सिंपल हाईलाइट किया था कि यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हर एक चीज का उसके अंदर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि मतलब अगर कोई प्लांट कलेक्ट करना है क्लिनिकल ट्रायल उसका, अगर कोई फिनिश प्रोडक्ट कलेक्ट करना है तो वो प्लांट कहाँ से कलेक्ट करना है या फिर प्लांट कहाँ से तुम लोग ने कलेक्ट किया, उसके बाद उसने तुम लोग का जो भी एनालिसिस किया है वो किस बेसिस पे किया है, उसका रिपोर्ट कौन से फॉर्मेट में, वी एक्सपेक्टेड द रिपोर्ट इन विच फॉर्मेट से लेकर सब कुछ जो है उसके सारे टर्म्स कंडीशंस तुम लोग को ये PDF में अवेलेबल मिलेगा। सी यहाँ पे दिख रहा है प्रोटोकॉल, मतलब कौन सा प्रोटोकॉल तुम लोग फाइंड करने वाले हो, कौन से प्रोडक्ट है, उसका क्या क्या थेरापेटिक वैल्यू है, ऐसी पूरी चीजें यहाँ पे तुम लोग को मेंशन की हुई है, ठीक है। ओके, नाउ आई विल रीड दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ इन फ्रॉम द बैकग्राउंड। So fundamental aspect of holistic system need to adequate positioning while designing the clinical trials to examine the safety and efficacy of the Ayurvedic approach. Okay, why we are performing the clinical trials? For the examining the safety and efficacy of the Ayurvedic approach. Furthermore, the other challenges and issue related to the quality and safety, that is dosage form, delivery system, diverse concept and complex approaches in clinical trials. Here the answer is of your Dhanashri का question कि उसने question मतलब it is a question actually कि यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है कि व्हाट इज द डोसेज फॉर्म वी आर गिव, ठीक है, डिलीवरी सिस्टम कैसे होनी चाहिए, बिकॉज आयुर्वेदा की डिलीवरी सिस्टम्स बहुत अलग अलग टाइप में है, ठीक है, दे आर नॉट डायरेक्टली ईच एंड एवरी मेडिसिन दे आर नॉट गिविंग डायरेक्टली टू द ओरल और सबलिंगल या फिर डायरेक्टली क्या बोलते हैं इंट्रावीनस वगैरह नहीं देते सारे मेडिसिन, ठीक है। मैक्सिमम मेडिसिन जो मतलब ओरली भी हो या फिर मैक्सिमम जो कुछ भी उनके मेडिसिन है उनके डिलीवरी का एक अप्रोप्रिएट पैटर्न होता है, जैसे कि पहले वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, उसके बाद पूरा प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी करते हैं एंड उसके बाद उनका जो कुछ भी है ना शोधना वगैरह जिसके अंदर उनके हम लोग ने ये सारा हम लोग ने पंचकर्मा ट्रीटमेंट में देखा था, आगे है वो। तो एग्जैक्टली डिलीवरी सिस्टम अलग है, उनकी मेथड अलग है, तो वो सब कुछ है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स में ये सारी चीजें हम लोग को कैसे इन्वॉल्व करनी है एंड उसके हिसाब से हाउ एग्जैक्टली वी विल डू द क्लिनिकल ट्रायल, that is a major question mark during the preparing the clinical trials के guideline for the Ayush department. So outcome of the clinical efficacy and during the interaction also the post certain limitation in research, ठीक है। डेफिनेटली जैसे मैंने बोला कि these are the lots of question mark कि how we will exactly go, because ये ऐसा नहीं कि हफ्ते भर के लिए एक इंसान को बिठाया है उसके बाद उसको 3 दिन के लिए उसको डोज दिया उनको इफेक्ट आया, नो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे प्यूरिफाई योर बॉडी, उसके बाद दे स्टार्ट द ट्रीटमेंट एंड उसका इफेक्ट भी होता है, वो तुरंत नहीं होता है, द इफेक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, वो स्लोली इफेक्ट होता है। सो उसको एक्चुअली एनालाइज करना उतने टाइम पीरियड के लिए इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। सो एग्जैक्टली क्या क्या करना है, व्हाट आर द लिमिटेशंस, वो भी उन्होंने स्टडीज किए।
A holistic approach may be adopted to validate the therapy and approach with the with integration of the principle of Ayurveda and biomedicals without losing the vital fundamental of both the systems. ठीक है, तो उसके आंसर्स के लिए उन्होंने क्या किया, दे आर यूजिंग बोथ द टेक्निक्स, मतलब आयुर्वेदा के प्रिंसिपल्स एंड जो मॉडर्न मेडिसिन के प्रिंसिपल्स है उसके अंदर, मतलब they try to क्या बोलते हैं, मिक्स मैच विद बोथ द मेडिसिन, सॉरी बोथ द प्रिंसिपल्स टू वो जो स्टडी है उसको एक प्रॉपर स्केल मिले एंड उसके हिसाब से वी कैन स्टडी कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने बहुत से जो मॉडर्न मेडिसिन के कुछ फंडेज थे वो उन्होंने आयुर्वेदिक फंडा में अप्लाई किया जस्ट टू क्लिनिकल ट्रायल टू चेक कि वो सच में इफेक्टिव हो रहा है या नहीं उसके लिए, ठीक है। But they are not without losing the vital fundamentals of both the system in the sense उसके हिसाब से जो आयुर्वेदा के मेजर प्रिंसिपल्स है उन्होंने निग्लेक्ट नहीं किया। Along with that principle, they are try to use the modern methodology for analyzing this drug efficacy with the help of clinical trials. So such approaches will be well-designed research plan would possibly facilitate to generate the tangible एविडेंस, ठीक है। सो एग्जैक्टली अभी हम लोग को देखना है ये क्या था कि एग्जैक्टली जब उन्होंने ट्राई किया कि हम लोग को क्लिनिकल ट्रायल्स करने हैं तो उसके लिए उन लोग को क्या क्या क्वेश्चन मार्क्स आए थे एंड उसके बाद हाउ दे आर सॉल्विंग द क्वेश्चन मार्क, उसका एक बैकग्राउंड देने वाला ये पैराग्राफ है। आई फील दैट इट मे बी द इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फर्दर प्रोसीजर, दैट्स व्हाई आई हाईलाइट दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ। ओके सी, तो अभी आयुर्वेदिक के जो ट्रीटमेंट होते हैं उसके अंदर दीज आर द फ्यू टर्म्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई जस्ट हाईलाइट सो जब भी नेक्स्ट टाइम तुम रीड करोगे तुम लोग को पता चले कि ये रीड करना, ठीक है। दैट इज अ अपोपोदेशना, दैट इज अ पूर्व, मतलब द एविडेंस बेस्ड ऑन द थेरापेटिक लेट। प्रत्यक्ष, दैट इज अ डायरेक्ट एविडेंस, ठीक है। अनुमाना, दैट इज अ लॉजिकल इंटरफेरेंस। उपमाना, that is the analogy or comparative or control design, and yukti, that is a reproducible experimental